सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yeah, now are you getting my voice? Yes, sir. यस सर अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ, ओके फाइन। Friends, ओके सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आई थिंक हमने कर तो लिया था, बट फिर भी अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है। कर लिया है ना? करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, डोंट वरी, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। सर आपने फ्राइडे को कुछ आगे कराया था टॉपिक्स डाउट के बाद। फ्राइडे हमने कुछ पढ़ा था डाउट के बाद? थोड़ा सा पढ़ा था हमने शायद। करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल्स कौन से होते हैं? मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल बिकॉज इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और बाहर किसी भी क्लोज लूप की मैग्नेटिक फील्ड looks exactly similar if it is a closed loop carrying current, or if we consider a magnet having north pole and south pole, their magnetic field is exactly same. मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में, बट इतना आपको पता ही है। इट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल आउटसाइड and inside the magnet is from south to north, always in the form of closed loop. In the case of single current carrying loop, we had defined the direction by using right hand rule. नीचे से करंट ऊपर निकल रही है, ऊपर से अंदर। अभी थोड़ा बीच का टॉपिक को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बस ये लेफ्ट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज the position of I, current seems anti-clockwise. Anti-clockwise hand को कर्ल करते हैं, then thumb is towards you. Magnetic field direction is in the direction of thumb. ये तो है कौन सी, जो सीधे एक्सिस पे थी। थोड़ा ऊपर जाएंगे सिमेट्री से, नीचे की तरफ वायर ज्यादा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी स्लाइटली कर्व्ड। और ऊपर जाओगे मोर कर्व्ड लाइक दिस। Similarly, on the other side also, magnetic field lines of a closed loop and a magnet looks exactly similar.
Therefore, we can say every current carrying loop behaves as a magnet. Magnet का technical name है magnetic dipole. Dipoles having two poles, one positive, one negative charge electric dipole, one north pole and one south pole. So just to compare, we also call north pole as a positive magnetic charge क्योंकि यहाँ से field lines बाहर निकल रही हैं. Just like positive charge produces electric field lines, and the negative charge south pole is assumed as negative charge. Charge है नहीं, this is just a hypothetical assumption. दूसरा जो better name होता है that is pole strength. So this is positive pole. ये हम करेंगे next chapter में. Small m is used for pole strength, qm is for magnetic charge. So like electric dipole moment is charge into distance, magnetic dipole moment is magnetic charge or pole strength into distance between them. यहाँ पे तो clear cut है because it is exactly similar to that of electric dipole. Direction is also from south pole to north pole, like electric dipole moment is from negative to positive, right? But in the case of a closed loop, बीच में कोई distance है, this is the same phase. Look, from one side is north pole, other side south pole. There is no distance between them. तो इन दोनों को compare कैसे किया अभी हम करेंगे नहीं, maybe later on कभी. Every magnet, if it is assumed as a solenoid, यहाँ है नहीं, हम assume कर लें कि magnet is made up of wires. So इसकी जो magnetic field का जो formula आएगा और इसके magnetic field के formula को compare करके when we calculate the magnetic dipole moment, ये कर सकते हैं. एनसीईआरटी में भी एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, अभी नहीं, जब मैग्नेट करेंगे तब वहां पर प्रूफ करेंगे सोलेनॉइड बार मैग्नेट इज एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेट, दोनों को कंपेयर करके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय m, इट इज इक्वल टू ni into a. n is the number of turns in the loop, I is the current and a is the area vector. अब अगर हम इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखें तो बाय यूजिंग दैट लॉजिक, जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी नॉर्थ पोल. लेफ्ट साइड से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, अरन सी फ्रॉम लेफ्ट साइड. करंट कैसी दिखेगी लेफ्ट साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? नीचे से ऊपर, डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर. अगर आप लेफ्ट साइड खड़े हो एंटी क्लॉकवाइज हाथ कर्ल करते हैं हम बाहर की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट फेस विल बिकम नॉर्थ पोल. द फेस एट विच करंट अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल, और जिधर से करंट क्लॉकवाइज दिखती है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है. एंड देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन देम, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, दोनों को इक्वेट करके, एंड इक्विवेलेंट वर्जन इज n into I into a. जिस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज, दैट फेस बिहेव एज नॉर्थ पोल, इधर से करंट क्लॉकवाइज, दैट बिहेव एज साउथ पोल. बीच में डिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज सेम थिंग, शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट लिख लेते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ क्लोज्ड लूप. एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या? एक सेकंड फिर से बेटा, सामने से देखने का टॉप व्यू देखोगे इसके लेफ्ट साइड से, तो हमें ऐसा सर्कल दिखेगा एक. यस सर. है ना, इस सर्कल में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रॉम योर आई पोजीशन इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर निकलती है, बाहर की तरफ. कर्ल योर राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज थंब बाहर. यस सर, बाहर. और मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड कौन से वाले पोल से बाहर निकलती है, नॉर्थ, राइट? साउथ टू नॉर्थ. यस सर. नॉर्थ से बाहर निकलती है, सो एंटी क्लॉकवाइज करंट इज नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज करंट है अगर तो वो साउथ पोल. तो उधर आपने वो क्या लिखा है? अच्छा, x लिखा हुआ है, मतलब वर्ड्स. ये डॉट है, करंट इज आउट ऑफ द, इधर से ऊपर से क्रॉस, नीचे से करंट निकल के ऊपर से अंदर जा रही है, डॉट एंड क्रॉस रोटेशन. क्लॉकवाइज करंट का मतलब साउथ पोल, and accordingly we will find out the magnetic dipole moment of any current carrying loop. ये हमने किया था लास्ट क्लास, किसी को याद है? कुछ पता नहीं, स्टार्ट किया था. ओके, मे बी वीकेंड में थोड़ा और आगे निकल गया. ध्रुव, यस सर. अंडरस्टूड दिस? हाँ जी सर. The last question में तो
लास्ट क्लास में तो क्वेश्चंस ही करे थे। अच्छा क्वेश्चन करते, सो मे बी अनदर बैच, क्या होगा, नो प्रॉब्लम। ध्रुव, व्हाट हैपेंड, वेरी लो एनर्जी? No, sir. I had a sore throat. Okay, you have a sore throat, fine. What will be the SI unit of this magnetic dipole moment? N तो number of turns है, N is number of turns, कोई unit नहीं होगी, and I is current, A is area. So current के लिए ampere, area के लिए meter square, ampere into meter square. But when you have to find the direction, मैग्नेट के केस में तो क्लियर है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ क्लियर है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ओनली, बट वी कैन आल्सो गेट दिस बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो मेथड यूज करते हैं, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, जिधर थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आल्सो। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। Magnetic moment of a closed loop is given by the right hand thumb rule only, just like the direction of magnetic field, क्योंकि किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। करेक्ट। सो इससे एक चीज और प्रूफ होती है कि हम मोनोपोल्स कभी नहीं बना सकते, वी कैन नेवर सेपरेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये एक ही सिंगल बेचारा एक सिंगल वायर है, इनफैक्ट अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच जाएंगे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम विल आल्सो सर आपने NIA क्या सामने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बेटा यूनिट लिखी है इसकी, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। अच्छा एम्पियर, ओके। A is ampere and area is meter square. So every closed loop, the property of closed loop we did, if we put in a uniform magnetic field, total force is 0. किसी क्लोज लूप को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स इज ऑलवेज 0. नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर टॉर्क. फोर्स में भी 0 बट टॉर्क, फोर्स इज ऑलवेज 0 बट टॉर्क may not be 0, just like electric dipole. Electric dipole में भी total force is always 0 but torque is non-zero. So before that जितने भी cases होंगे in the current के लिए cases क्या कर सकते हैं, revolving charge, rotating charge, disk, उन सभी में करंट होगा और करंट की अपनी अपनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. मे बी स्फीयर रोटेटिंग विल आल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. करेक्ट. ए चार्ज स्फीयर, पॉइंट चार्ज, करंट. अभी हम पहले क्लोज लूप वाले देख लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज आल्सो गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल. एंटी क्लॉकवाइज करंट, देन इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन. कुछ पुराने ओल्ड बुक्स में इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं. If current is anti-clockwise, dipole moment is also out of the plane. If current is clockwise, it is into the plane. Friends, anti-clockwise out of the plane, clockwise into the plane, or accordingly we will find out the direction. So जो magnetic moment की direction है, same is the direction of current, same is the direction of magnetic field also. Right hand से दोनों calculate कर लेते हैं. If it is a twisted loop, बीच से इसको हमने का twist कर दिया, दो अलग plane में लगा दिया, or maybe a 3D plane, then we have to determine for each loop and add them vectorially. Okay. So हम कुछ cases के dipole moment calculate कर लेते हैं. Calculate the magnetic dipole moment of the following loops. So Kabir, since you have done all this, हम इसके कुछ questions करते हैं DPP style में. Every topic, every chapter 5 to 6 practice questions. ठीक है. तो अगर ये आपको आता है, you can start question also. Obviously साथ में इधर भी देखना है. Fine. Don't waste time if you know everything. Revision हो रहा है, notes आपके पास है, जो extra लगेगा वो note करना है. राइट. समझ गए ना. तो टाइम बड़ा लिमिटेड है एंड स्पेशली फॉर यू. राइट.
हम बार मैग्नेट का जो फॉर्मूला है और सोलेनॉइड का फॉर्मूला है दोनों को इक्वेट करेंगे, assuming that solenoid is a solenoid is bar magnet or bar magnet as an equivalent solenoid. क्योंकि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो. सिमिलरली वी हैव फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल आल्सो. करंट कैरिंग लूप में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, सो आइडियली इट शुड नॉट बी अ डाइपोल. डाइपोल के लिए हम करते थे चार्ज इनटू डिस्टेंस, right? But it behave as a dipole. All the properties are similar to that of a dipole or that of a magnet. Question: calculate the magnetic dipole moments of the following loop as shown. So suppose there is a rectangular loop placed in xz plane. Magnetic field अभी नहीं है, अभी सिर्फ हम क्लोज लूप के डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. In a yz plane there is a rectangular loop carrying current of I, length is L and width is B. Find the dipole moment, magnetic dipole moment of this loop as shown in the diagram. Second is suppose a circle which is folded in between. Folded in between मतलब तो कुछ और मत समझ लेना. This is circle folded like a book, 90 degree. Radius R carrying current I. Find the dipole moment of these okay, like this. Huh? Diameter के along folded है वो. This is the diameter. Diameter से 2 perpendicular direction में, आधा x z में है और half of it is. सर ये है क्या? y ये मिस कर दिया सर. ये डायग्राम किस बात का? बेटा ये लूप है, जैसे वो एक स्क्वायर लूप था, दिस इज अ सर्कल लूप, बट सर्कल इज नॉट इन द सेम प्लेन. सर्कल को हमने बीच से 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया है. इक्विवेलेंट वर्जन अगर हम किसी रेक्टेंगल में बनाते हैं देन इट विल बी लाइक दिस. बुक को बीच से 90 डिग्री. दिस इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप. समझ ये 3D समझ आ रही है? The third ये diagram. सर दूसरे प्लेन्स में y एक और एक x दो पर. प्लेन्स में, करेक्ट. यस यस, इट इज लाइक दिस. ठीक है, तो वैसे ही वो भी दो अलग अलग प्लेन में, एक सेमी सर्कल एक प्लेन में, दूसरा सेमी सर्कल दूसरे प्लेन में, एंड यू हैव टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अकॉर्डिंगली. नीचे वाले में करंट की डायरेक्शन करंट इज आई, और ये एक स्क्वायर था सपोज एल लेंथ का, उसको बीच से फोल्ड कर दिया, तो L/2 and L/2 will be these lengths. Determine the magnetic dipole moment of these loops.
राइट। क्या है पहले में, पहले फर्स्ट वन का देखते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट? आई इंटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हो गया एल इंटू बी। डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, थंब इज माइनस जे कैप, सो इट विल बी माइनस जे आई इंटू एल बी टाइम्स माइनस जे कैप। सेकेंड वाले में वी कैन कंसीडर दिस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सेमी सर्कल्स, बीच में करंट जो आई आई होंगे वो कैंसल आउट। So the one which is in YZ plane, इसके लिए डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? x की तरफ। Curl your finger in the direction of current, YZ में था x की तरफ, नीचे वाला XZ में इसका डाइपोल मोमेंट आएगा। सर ये I to K था इसलिए वो हुआ माइनस J। This one? Yes sir, yes। Clockwise current को clockwise से कर्ल कर लो। Finger curl clockwise in the direction Yes of sir, तो current, inside। pointing downwards। Downward मतलब माइनस J कैप। और अच्छा, ओके सर। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, जिस तरफ करंट होती है उसके उस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करते हैं। परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन। इधर ऐसे YZ वाले में एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए M1 I की तरफ होगा। नीचे वाले XZ में इट इज टुवर्ड्स Y, इट विल बी J कैप। डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस ट्विस्टेड लूप M1 plus M2, M1 is I into pi r square by 2 I cap plus I into pi r square by 2 times J cap। सर एक बार सेकंड वाला फिर से समझा दो, तो वो है। सेकेंड वाले में दो अलग अलग केसेस है, इट्स लाइक दिस। यस सर। क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे, थंब इज कमिंग टुवर्ड्स x। नीचे वाले में करोगे एंटी क्लॉकवाइज, थंब इज कमिंग टुवर्ड्स y। तो टू डिफरेंट प्लेन, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में केवल डिफरेंट है। ऊपर वाले हाफ के लिए आई कैप, नीचे वाले हाफ के लिए जे कैप। सेम केस ये भी है, बस केवल एरिया L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, कंसीडरिंग इट टू बी अ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स पार्ट। तो दो अलग अलग रेक्टेंगल अज्यूम कर लेते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ YZ वाले के लिए किधर हुआ? डायरेक्शन इज डिफरेंट। जो YZ प्लेन में उसके लिए डाइपोल मोमेंट किधर है? माइनस आई कैप। इसमें थप्पड़ नहीं चलेगा, इसमें घुमाना ही पड़ेगा। क्लॉक क्लॉक सर माइनस I है सर। समझ नहीं आएगा, सर उसके उल्टा है x के। क्या उल्टा है? राइट। सो I इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई कैप। और इसमें भी ये क्लॉकवाइज है, ये तो पहले वाला जैसा ही है, इट विल बी आल्सो डाउनवर्ड, सो माइनस जे कैप प्लस I एल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स माइनस जे कैप। सर आप कैमरा को थोड़ा राइट कर सकते हो? यस सर, थैंक यू सर। जैसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में, जैसे सपोज ये थर्ड वाले में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया I एल स्क्वायर बाई 2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? इसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी √2 रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डायरेक्शन भी आ जाएगी यहाँ से, somewhere in the x-z plane। For any loop we can find out, अब ये तो सारे loop के केसेस थे, it can be a moving charge or rotating charge, also we can find out the magnetic dipole moment by using the same formula। A charged particle of mass m, charge q, rotating on a circle of radius r। सर आपने बीच में क्या बनाया हुआ है सेकंड और थर्ड के? कुछ नहीं है, नहीं बीच में सर, उसके मतलब सेकंड के डायग्राम में जब फोल्ड करते हो। यस सर, यस सर, यस सर। बीच में वायर नहीं था ना, तो लूप कैसे लेंगे? बीच में दो वायर ले लिए, having current in opposite direction। ओके सर। Loop should become closed, na? It was like this only। So we
assume that it is a combination of two semicircles. Only then it will be a closed loop, and only then we can define its magnetic moment separately. और उन दोनों में current, because it is in opposite direction, so those current will cancel out each other. Next is magnetic dipole moment of a rotating charge. Magnetic dipole moment of a rotating charge. Rotation of charge will be like a current, equivalent current, and with the help of equivalent current, we can determine its magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment due to rotation of charge. First is, let's say, a point charge. वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन के केस में we define then Bohr magneton. A positively charged particle of charge q is rotating on a circle of radius r with speed v and उसमें स्पीड भी हो सकती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी भी पता हो सकती है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन. उसके टर्म्स में हम करंट कैलकुलेट करते हैं, लाइक वी डिड फॉर मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में इक्विवेलेंट करंट लेंगे. अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल वी कैन कंसीडर एन इक्विवेलेंट करंट. Equivalent current which is produced because of this rotation of charge. It will be total charge q divided by time t. So q divided by 2 pi r by v. That's the current. और इस current carrying loop का dipole moment और magnetic moment और magnetic dipole moment, it will be charge current into area. Magnetic dipole moment will be I into pi r. So every rotating charged particle is associated with some magnetic character, and that magnetic behavior is expressed in terms of magnetic dipole moment. So that will become q v r by 2. Rotating charged particle behaves like a magnetic dipole because it will also have its own magnetic equivalent current, because of the current can be considered as a loop. Now इसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, because this particle has a mass m and it is rotating on a circle. सर्कुलर पाथ में रोटेट करने में, या सपोज अगर कोई बड़ी साइज बॉडी भी होगी, डिस्क और स्फीयर, in the case of rotation it is always associated with some angular momentum. ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? Rn. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? याद नहीं. विनीत, एंगुलर मोमेंटम r cross p. Okay. Moment of linear momentum is called angular momentum. Okay. What is the formula final? mvr. नहीं, मैं इस सिचुएशन के लिए पूछ रहा हूँ, वो तो एक जनरल फॉर्मूला है. फॉर अ पार्टिकल mvr, फॉर अ बॉडी I omega. Disk or sphere or rod, उसके लिए I omega, and for a point charge and point mass it will be mv into r perpendicular. अगर कोई बड़ी बॉडी होती तो उसके लिए हम उसको एलिजिबल, यहाँ पर भी आई ओमेगा है, अगर हम v को r ओमेगा लिख लेते हैं तो फॉर अ पार्टिकल mvr perpendicular, फॉर अ बॉडी इट इज आई ओमेगा. नाउ इफ वी डिवाइड मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, दैट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, कॉल्ड एज
एबीसीडी क्लास नहीं करते? क्यों नहीं करते उस टाइम पे? वही टाइम मिला तुमको पूरे दिन के 1 घंटे वही मिले हैं? अच्छा बेटा वो क्लास करनी जरूरी है। तुम्हारा नॉन ट्रेंडिंग स्कूल है ना, फिर स्कूल है, पब्लिक स्कूल तो जाते नहीं, एनसीईआरटी तो होती नहीं होगी कवर, तो क्यों नहीं पता इसका रेशियो नाम क्या चल रहा है फिर जी में? ओके बेटा वो क्लास मिस नहीं करनी है आपको, एबीसीडी क्लास करनी है। मैं बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें बस जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि आपको वो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। ये इसको कौन सा रेशियो बोलते हैं? एनीवन? एम बाई एल इज कॉल्ड व्हाट? ऑनलाइन वाले किसी ने अटेंड किया क्लास सर की? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड? कोई है मैदान में? आशुतोष, व्हाट इज दिस रेशियो कॉल्ड? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। श्रेया आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. What this ratio is called? The ratio of magnetic dipole moment to angular momentum. सर ये It is constant कटेगा? for VR तो कटेगा ही, क्यों नहीं कटेगा? सर कि QVR by 2 divided by 1 by M by V है ना? 1 by क्यों है? तो VR ये ओ अच्छा ओके। तो कोई तो बता दो यार, इतने लोग क्लास करते हो, किसी ने क्लास नहीं की सर की? सर किस सर की? एपी सर की? बेटा मैं ही ऑन करता हूँ, होस्ट में ही रहता हूँ, ऑन करके बच्चों का एडमिट मैं ही करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं ही ऑन करता हूँ। 17-18 लोग करते हैं, थोड़े प्लस माइनस 2-3 जो सिंसियर लोग हैं लाइफ में। उस 1 घंटे में कोई तीर नहीं चला लेते आप। Other than that, that time is not so productive. It's just an excuse. और अभी इंडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, वो मुझसे 2 चैप्टर आगे ही रहेंगे एज पर प्लान। एक सीबीएसई क्लास होती है, अलग से उसकी बात हो रही, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सर उसमें पहले पढ़ाते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है? क्योंकि अभी हम सीक्यू है तो वो थ्योरी पे भी लाइन लाइन पे क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट दिस रेशियो इज कॉल्ड? कर्नाटा गोल। सर की अगर क्लास को यूज करो तो मेरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है कोई भी सिंसियरली नहीं करता 2-4 लोगों को छोड़ के। और ये सर ने जो पढ़ाया उस टाइम मेरी भी क्लास चली थी, आई वाज लिसनिंग। कॉल्ड gyromagnetic ratio, constant for all the shape of rotating charge। याद आया किसी को? से आप क्लास करते हो? सब बीच बीच में छोड़ रहे थे। थोड़ी बीच में छोड़ देते हैं, इसके लिए मुझे चार्ज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम यही है, जब कोई चीज फ्री मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना, असली बात यही है, राइट? m by l is q by 2m चार्ज। सर फ्री नहीं पढ़ाते, सर को मैं पे करता हूँ इसलिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। यूज दैट क्लास, वो 3 घंटे एक हफ्ते के, बहुत ज्यादा 3 hours यू कैन फाइंड आउट टाइम फ्रॉम योर डेली रूटीन। स्कूल में जाते नहीं हो, ऑनलाइन स्कूल में बस ऑन अटेंडेंस के लिए लॉग इन करते हैं, के बाद तो बस भगवान भरोसे अपना गेम चलता है, ठीक है? आर्यन, और फिर अभी करंट चल रहा है, फिर जी में कब खत्म होगा भाई टर्म 1? मेरी तो अपनी स्पीड हाफ हो गई नॉर्मल ऑफलाइन की कंपैरिजन में ऑनलाइन स्पीड। अब उनका छोड़ो, मैं तो बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज एज पर द न्यू बोर्ड टाइमलाइन हमारा टर्म 1
नवंबर में होना है, मतलब कि हमें सितंबर तक हर हालत में पूरा सिलेबस खत्म करके अक्टूबर में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उनके भरोसे मत रहो, दैट वाज द पॉइंट। अगर अभी पढ़ लोगे आगे दोबारा रिवीजन ही होगा जब भी करेंगे तब। और 3 घंटे में कोई भी ऐसा कुछ बहुत प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता, समझे? हाँ, उसकी भी अटेंडेंस कंपलसरी है। जो भी पढ़ोगे उसमें सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। तो न्यूमेरिकल पार्ट में कराऊंगा, वो थोड़ी पढ़ाऊंगा क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डेफिनेशन है। आई विल ओनली एक्सप्लेन दी थिंग्स, बट आपको उसकी थ्योरी समझने के लिए सर की क्लास अटेंड करनी थी जो आपने मिस कर। अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, एंगल ऑफ डेप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैं की थोड़ी है सर हिला रहे हो। बता तो नहीं पाया अभी आंसर। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है इसमें UL/L, मतलब वही है। Magnetic moment to angular momentum ratio is constant for all the type of rotating charged body, irrespective of the shape, whether it is point charge, ring, disc, sphere, cylinder. This ratio is going to be constant as long as charge is uniformly distributed. For a uniform distribution of charge, the ratio of magnetic, इससे एडवांस में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में conceptual question. Speed increases, both increases, magnetic moment increases, L decreases. सर एक सेकंड रब मत करना, बस ये पूछना था सर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखवाया था एपी सर ने इसमें अपॉन। अभी अभी आ रहे बेटा, वो सिर्फ एनसीईआरटी वाला पार्ट था, थोड़ा ब्रॉडर देख रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अभी एक जनरल लिखा ना, जनरल केस फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का स्पेसिफिक केस हो गया इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। उस केस में उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। वो उस इलेक्ट्रॉन का केवल एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो, यही डिफरेंस है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास एंड दिस क्लास। अब हम किसके बाद कैलकुलेट करेंगे, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, राइट। लेकिन जो एनसीईआरटी के लिए या स्कूल के लिए, दैट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कीवर्ड सुना है, बोर मैग्नेटॉन। कबीर, व्हाट इज बोर मैग्नेटॉन? What is Bohr magneton? वो सही है, तुमने बोला वो सही है। My question is what is Bohr magneton? हमें केमिस्ट्री क्वेश्चन है ये, सबके लिए है, उसको हम देखो पहले। What is Bohr magneton? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं यार केमिस्ट्री। बोर मैग्नेटॉन नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। What is Bohr magneton? This is a unit to measure the magnetic orbital magnetic moment. स्पिन हो या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होना है ना केमिस्ट्री में। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑर्बिट का होता है, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का होता है, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हैं। उन दोनों के लिए यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ बोर मैग्नेटॉन। दिस इज द यूनिट फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। फैक्टर आगे चेंज हो जाता है। ये जो अभी हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉर एनी पॉइंट चार्ज, नाउ विल सी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom, magnetic dipole moment of orbital बोल सकते हो, orbital magnetic dipole moment of electron in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, so that's why this is the न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉइंट चार्ज के लिए कहानी थी वो यहाँ भी वैलिड है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट, q by 2m। q इज माइनस, ये वेक्टर फॉर्म में है,
इसलिए माइनस लिख लिया, मैग्नीट्यूड वाइज ओनली E/2। बी, द gyromagnetic ratio of revolving electron of hydrogen atom। एपी सर की क्लास सबको करनी है, ज्यादा हैंडसम बनने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ने में भी एफर्ट लगाना पड़ता है, उससे बेटर है किसी एक्सपीरियंस टीचर से आपको वो कंटेंट हफ्ते के 3 घंटे में मिल रहा है। ठीक है, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट यू आर गेटिंग दैट बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज। और सर का सिलेबस मुझसे 1 महीने पहले खत्म होगा, 1 मंथ। समझ गए, मिस नहीं करनी है, समझ गए। हाँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन की कहानी है और हाइड्रोजन में बोर गेव हिज पोस्टुलेट। व्हाट इज बोर पोस्टुलेट आर्यन? बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो बोर ने पोस्टुलेट दिया था, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। क्वेश्चन पे सरप्राइज क्यों जाते हैं यार? ठीक है, पढ़ते बहुत है यार, हर ट्यूसडे थर्सडे पढ़ते रहते हो फिर भी। हाँ, ये 11th का है बेटे, तभी तो पूछ रहा हूँ। क्या अच्छे तरीके सर आप म्यूट हो गए। वहां से बंद कर दो यार पीछे। ओके, सॉरी, यस। बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? बोर्स एटॉमिक पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट फॉर थ्योरी। 11th का ही भाई ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोर्स ने रदरफोर्ड का मॉडल मैथमेटिकली क्रिएट कर दिया था। अगर एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, then there will not be any radiation or no energy loss, where n starts from 1. If angular momentum is integral multiple of h/2π, electron can revolve in the circular orbits without emission of energy. Right? इसको सब्स्टिट्यूट कर दो मैग्नीट्यूड वाइज। ये तो वेक्टर फॉर्म में था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स nh/2π, it becomes integral multiple of EH/4πm। ये EH/4πm को कुछ H कट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। दिस इज बोहर मैग्नेटॉन। So electron in any atom, this orbital momentum will be, orbital magnetic moment will be integral multiple of certain quantity called as Bohr magneton. Right, ये तो वो है जो NCERT का पार्ट है। Now let's do some more questions. Example on the gyromagnetic ratio. Suppose there is a disk of mass m, radius r, having a charge q distributed uniformly. Charge q distributed uniformly on its surface. Calculate the magnetic moment. एक तरीका इंटीग्रेशन का भी है। Disk having charge q, radius r, distributed on its surface uniformly. रिंग लेके इंटीग्रेट करेंगे तो भी मिल जाएगा, बट हम इंटीग्रेट क्यों करें जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है।
gyromagnetic ratio का, which is applicable for all, not only for a point charge. तो बिना कुछ किए आ जाएगा, it will be quite easy. ओमेगा से सपोज ये रोटेट हो रहा है, टोटल चार्ज इज q, मास इज m, रेडियस इज r. अगर इंटीग्रेट करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे रिंग्स बनानी पड़ेंगी, सर्कुलर लूप्स, और हर एक के लिए r डिस्टेंस पे dr थिकनेस की इसमें करंट लेंगे di, एंड अकॉर्डिंगली di का चार्ज निकालेंगे dq, देन dq बाय टोटल टाइम पीरियड इज di into pi r square is dm, फिर इसको इंटीग्रेट करें आ जाएगा वैसे भी, बट उतना बॉल करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू डायपोल मोमेंट इज टू एंगुलर मोमेंटम इज q by 2r. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला फॉर अ बॉडी, रोटेटिंग बॉडी इज I ओमेगा, और ये डिस्क है, डिस्क के लिए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और देन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास वाले एक्सिस के अबाउट 11th का, ये 11th तो याद है तुम्हें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आशुतोष, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आशुतोष. So सो रहे हो mr क्या? square by 2. ऐसा लगा अभी उठे हो. m गॉन, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4. आशुतोष आप ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? सर अभी मेरे वो मैं साइकिल से गिर गया था, तो चिन के पास 8 स्टेचेस आए हैं, तो अभी तो आ भी नहीं पाऊंगा. साइकिल से गिर गया, वेरी गुड. q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रेट करके अगर तसल्ली लेना चाहो तो भी कर लेते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट इट विल वर्क फॉर ऑल दी शेप. इंटीग्रेट करके इसलिए देखना जरूरी है कि अगर सपोज ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो हमें उसमें वो रेशियो थोड़ा जो q by 2 है वो 2 कुछ चेंज हो सकता है. इन दैट केस वी नीड टू डू द इंटीग्रेशन. r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का छोटा सा रिंग लेंगे, एंड इन दैट रिंग, ध्रुव अंडरस्टूड? ध्रुव Yes, yes. ओके, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ. इस छोटे से पार्ट में अगर चार्ज है dq, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इंटू पाई आर स्क्वायर, di इज dq बाय टाइम पीरियड. dq कैसे निकालेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया से, चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग. दिस इज चार्ज डेंसिटी, और इस रिंग का एरिया कितना होता है? 2 pi r dr, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. 2 pi r is the length, dr is the width, multiply by pi r square, और नीचे के टाइम पीरियड को हम लिख लेते हैं 2 pi by omega, right? 2 pi gone, sigma omega r cube, ये r square r cube dr, ये इस छोटे से वाले रिंग का है, ये वाला पाई. इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड, पूरे रिंग का करने के लिए, पूरे डिस्क का करने के लिए 0 to r. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये एग्जाम में तभी यूज करेंगे जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो. r स्क्वायर बाई 4, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, r to the power 4 by 4. पाई गॉन, सेम आ गया, q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4. It will give the same.
तो चाहे वो स्फीयर हो, तो डिस्क वैसे हो, कैसा भी shape हो। इंटीग्रेशन का भी यूज तो करना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास है पहले से। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो वो कुछ नीचे कहानी चेंज होती है, कांस्टेंट होगा बट दैट विल नॉट बी क्यू बाई टू, मे नॉट बी क्यू बाई टू। अगर रेडियली लीनियर है तो शायद हो भी सकता है ना? समझ गए? यस सर, समझ गया मैं। सर अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो कांस्टेंट आएगा, बट जो नीचे का टर्म है वो क्यू बाई टू एम नहीं होगा। दिस रेशियो may not be q by 2m. If it is symmetrically distributed, the ratio will still be constant, but it may not be exactly q by 2m. ओके सर। Next, magnetic dipole in external magnetic field. Dipole in external magnetic field. Kabir, any doubt? नहीं? Clear? यहाँ पर क्या किया है? रिंग के लिए हमें इसका एरिया निकालना था, ये ग्रीन वाले पोर्शन का। बस तो एक तो तरीका ये है कि हम बाहर का एरिया निकालें, आउटसाइड, बट क्योंकि ये बहुत पतली थिकनेस है डी आर, दिस इज आर, दिस इज डी आर, हमें जो एरिया निकालना है वो शेडेड पोर्शन का निकालना है। एक तो तरीका है आउटर माइनस इनर पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दूसरा तरीका है इसको कट कर दो और स्ट्रेट कर लो, क्या शेप बनेगा? रेक्टेंगल टाइप। रेक्टेंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? 2 pi r, and what is the width of rectangle? dr, area is 2 pi r dr. So magnetic moment for any case, any shape, as long as it is uniformly distributed, we can calculate directly with the help of ferromagnetic ratio. If it is non-uniformly distributed, तो हमें छोटे से कुछ अलग-अलग लूप बना के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तुम यार यहीं आके सेल्फ स्टडी किया करो मेरे पास। कब कब करते हो? यूजुअली थर्सडे रात में शाम को कितने बजे से अब तक? रात बहुत लंबी होती है, टाइम होता है कुछ? और पढ़ने का तरीका देखना है मुझे। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। केविन, केविन, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है क्लोज्ड लूप। अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं अगर हम किसी क्लोज्ड लूप को, नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी व्हेन अ मैग्नेट इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, क्लोज्ड लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर आपके पास बुक कौन सी है फिजिक्स के लिए? क्वेश्चंस कहाँ से करते हो? टेक्स्ट बुक लगेगी एक, संगेज या डीसी पांडे, एनीवन है कोई? पांडे है वो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले, उसी को स्टार्ट करें। ठीक है, क्लोज लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज हम ले लेते हैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल, लाइक अ रेक्टेंगल लूप। नेट फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो। उसका रीजन
राइट। तो इन एनी क्लोज लूप जब हम किसी भी क्लोज लूप को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, एल वेक्टर इज जीरो, एल वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और नेट फोर्स मस्ट ऑलवेज बी जीरो. Now a closed loop is, just for the simplicity, we consider in the form of a rectangle PQRS, a current carrying rectangular loop is kept in a uniform horizontal magnetic field. Magnetic field is in the same plane. Net force on the loop is zero, but each part of the loop may experience a force. Resultant is going to be zero. Yes, Arun, PQ पे फोर्स कितना लगेगा? PQ पे फोर्स कितना लगेगा? ये हमने लॉजिक से लिख दिया. Net force on the loop is zero. ये गलत से वर्कशीट भी आते हैं करने के लिए, प्लस के ऐप पे वर्कशीट्स करने के लिए आते हैं स्कूल लेवल. सबमिट करते हो क्यों? क्यों? बहुत परेशान दिख रहा है अपने जीवन में. क्या समस्या है? एक भी वर्कशीट नहीं किया अभी तक. PQ वायर पे फोर्स कितना लग रहा है अंदर? L is the length, B is the breadth. Force inside, inside. कैसे निकाला फोर्स वीर? हाँ, वेरी गुड. एक तो ये था, दूसरा लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड करंट हम इज इनसाइड इनटू द प्लेन इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस फोर्स? बट फोर्स ऑन वायर PQ, F is equal to BI into L. It is going into the plane. QR पे कितना फोर्स होगा किस डायरेक्शन में? आर्यन, फोर्स ऑन QR. QR what is the direction of force on QR? Zero होगा. Zero होगा because they both are in same direction. Force on RS क्योंकि opposite direction में है current, it will be opposite. Force on wire RS is magnitude wise same, but coming out of the plane. SP पे zero again because it is 180 degrees. Now these two forces are equal and opposite, so obviously they cancel each other. But if we consider the side view, नीचे से देखोगे अगर हमें दिखेगा PS टॉर्क लगेगा इस पे, करेक्ट. इसमें करंट ऐसे बी की तरफ थी, P वाले साइड पे नीचे, दिस वाज गोइंग इन, उसको हम साइड से देख रहे हैं. इस पे फोर्स नीचे था, इस पे फोर्स ऊपर.
उसका फोन आया था, कॉल मुझे बता दो क्या क्लास है 7 बजे, तो ये क्या इमोशन। हेलो, am I audible now? yes sir, yes sir. तो PQ पे फोर्स नीचे लग रहा है, RS पे SR पे ऊपर लग रहा है, एंड एज अ रिजल्ट दिस स्टार्ट रोटेटिंग। दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर में ये घूम जाएगा किसी थीटा एंगल पे। एट एनी जनरल पोजीशन थीटा, at any time t theta, at any time t the forces p पे नीचे लग रहा है और s पे ऊपर की तरफ, equal and opposite, so it forms a couple and due to which it is rotating। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी? लेफ्ट, मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट। पहले ये ऐसे रखा हुआ था लेफ्ट टू राइट, हम ऊपर से देखेंगे तो भी किधर दिखेगी? लेफ्ट टू राइट ओनली। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? अभी ये ऐसे रखा हुआ है, ऊपर से देख रहे हैं, देन फील्ड इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। नीचे से देखोगे तो भी ये लेफ्ट टुवर्ड्स राइट ही दिखाई पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज in this direction from left towards right। This is the direction of magnetic field। और 3D visualization था ये। Excuse me sir, एक डाउट है सर, QR और PS 0 कैसे हुआ, एक बार एक्सप्लेन कर दो। थीटा 0 थीटा 180 फोर्स का फॉर्मूला था BIL sin थीटा। करंट मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थीटा 0, करंट मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट थीटा 180, sin 0 is 0, sin 180 is 0। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से राइट साइड में, ऊपर से होगे तो भी इधर ही जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में L है, और सॉरी इस एज की लेंथ है वो B है। दिस एज इज ब्रेड, दिस इज B। और किसी टाइम t पे दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो गई। हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। द एंगल शुड बी टेकन ऑफ दिस लूप वेयर इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। राइट हैंड थंब रूल से इस क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है? इनटू द प्लेन। करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे, थंब इज इनटू द प्लेन, सो इट वाज लाइक इनटू द प्लेन। जब आप साइड व्यू देख रहे हो तो नीचे दिखेगा। इट रोटेट्स बाय थीटा, सो दैट डाइपोल मोमेंट विल आल्सो रोटेट बाय एन एंगल थीटा। इसका डाइपोल मोमेंट इसके साथ थीटा के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। दिस इज द डाइपोल मोमेंट which was vertically downwards initially। it is rotating, तो coil के साथ उसका perpendicular भी rotate होगा। angle between the dipole moment and magnetic field is taken as theta। so theta 90 minus theta, here it is 90, ये आ गया theta। in the right angle triangle B is hypotenuse, नीचे जो perpendicular आएगा वो आ जाएगा B sin theta। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सा डायग्राम है रेक्टेंगुलर लूप के लिए, बट द रिजल्ट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी शेप। सो फ्रॉम हियर वी गेट टॉर्क ऑन द लूप। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इज F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B sin थीटा। फोर्स इज BIL इनटू B sin थीटा। L और B को आपस में क्लब कर लेते हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ बिकम एरिया। BIA sin theta and I into A becomes dipole moment of this closed loop, so it becomes MB sin theta। अगर n number of turns होते सब में सेम डायरेक्शन में लगता तो NIAB sin theta आ जाता। That's it। Torque on the loop in the external field, and this formula is exactly similar to the इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा। P की जगह पे M, P की जगह पे B। The torque on the dipole moment, here theta is angle between magnetic dipole moment and magnetic field।
करेक्ट। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं एन m क्रॉस b इन वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी m क्रॉस b। m is NIA, where n is the number of turns, b is the magnetic field. Usually angle is given between plane and magnetic field to confuse. प्लेन का अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल अल्फा है तो ये अल्फा 90, देन थीटा विल बी 90 माइनस अल्फा। इफ प्लेन इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन परपेंडिकुलर विल बी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Accordingly you'll have to check. Most of the cases the angle is given between the plane and magnetic field. So किसी भी यूनिफॉर्म लूप में लूप पे फोर्स नहीं लगता, बट इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, but that torque will again become zero in theta 0 and theta 180 position. Theta 0 का मतलब हुआ plane perpendicular because theta is 90 minus alpha. Alpha किसके साथ एंगल है? Between the plane and magnetic field. Alpha is the angle between the plane of the loop and magnetic field. So today chemistry sir is not available to take the class. Permission आएगी होगी आपके पास ना? तो नहीं किया वैसे? नहीं लो, उसकी जगह में एक छोटा सरप्राइज टेस्ट है, डोंट वरी, टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ नहीं नहीं सर के बेटे का बर्थडे है आज, वो अवेलेबल नहीं है। राइट, अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम थीटा 0 बोल रहे हैं, थीटा 0 का मतलब हो गया कि प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हमने रख दिया लूप। दिस इज V. The loop should be kept perpendicular to it so that magnetic dipole moment will be in the direction of magnetic field. Theta 0, 40, torque 0, क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 डिग्री, यानी डाइपोल को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करोगे तो वापस आ जाएगा अपनी ही पोजीशन पे, and it will perform the angular SHM. All the results are same as it was for electric dipole in external electric field. Theta 180, it will be opposite to it. Dipole, electric dipole को stable equilibrium position से थोड़ा सा displace करते हैं तो it start performing SHM, और जो वहां पे SHM का फॉर्मूला था SHM के टाइम पीरियड का, that was P is equal to 2 pi root I upon P into E. Here it is 2 pi root I upon M into V. वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसी पे बेस्ड है मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर एंड अदर डिवाइसेस। ओके राइट। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी लग सकता है, टॉर्क भी लग सकता है, बोथ में भी नॉन जीरो, बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली टॉर्क इज नॉन जीरो, फोर्स मस्ट बी जीरो इन ऑल द पोजीशंस। किसी भी रैंडम से शेप में, जैसे हम टेढ़े मेढ़े लूप किए थे, आधा एक्स वाई में, आधा वाई जेड में, आधा जेड एक्स में, then we'll calculate the dipole moment in vector form. Magnetic field is B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे सेपरेट। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये भी सारी क्लास करनी है क्योंकि आगे के चैप्टर्स थ्योरेटिकल है और उनको मैं थ्योरी वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स-रेज, सोर्स एंड यूजेस। इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्स-रे, पता सबको है। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir.